सबसे पहले we are going to start with the grammar mistakes. I would request you to look at this one, which is whenever I arrived, they were already gone, and the correct one is this. Please have a look at it. When I arrived, they were already gone. Okay, अब इसका क्या मतलब निकला, ये गलत क्यों है? Whenever I arrived, they were already gone. जब मैं आया तब वो already जा चुके थे. लेकिन यहाँ पे गलती क्या करी है हमने? We have made this mistake. We should have used when, and we ended up using whenever. अब इनमें क्या difference होता है? When और whenever में क्या difference है? देखिए, बहुत अच्छी vocabulary. Let me introduce to you. You can have a look here. अब अगर मुझे बोलना है जब भी, जैसे कि जब भी मैं कोई काम करती हूँ कुछ ना कुछ हो जाता है. So whenever I start a new thing, something or some or the other thing happens. So जब भी मैं सोने जाती हूँ मेरी नींदें उड़ जाती है. Whenever I go to sleep, I just can't fall asleep. Okay? जहाँ भी, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे wherever. अब आप देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिल्कुल भी. जब मतलब अच्छा कब, 9 बजे, कब 10 बजे, कब हमेशा रातों में, कब हमेशा दिन में. whenever I go to eat, I don't feel hungry. Whenever I want to eat cake, the pastry guys don't have my favorite cake. So when, कब, right? इसीलिए हमने इसके आगे लगाया है whenever. Okay? जब भी. When do you wake up? I wake up at 6 o'clock. When do you go to sleep? I go to sleep at 10 o'clock. When. Okay? So when हम हमेशा टाइम के लिए यूज करते हैं. Similarly, यहाँ पे I hope I'm audible everybody. Please मुझे बता देना आप लोग अगर audible नहीं हूँ. And then we have yes. And then जब भी हम बोले कि जहाँ भी back in 2022 जहाँ भी हम देख रहे थे वहाँ पे कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे. So wherever we were looking or wherever we were going, we had coronavirus and the patients of coronavirus. So again, place के लिए हम बोलते हैं where do you live, right? Where do you work? Where is your village? Where do you go to shop? Where. तो जगह के लिए हम प्लेस के लिए बोलते हैं where. Similarly, जब हम ये बोलेंगे जहाँ भी जाना, अपना ख्याल रखना. So wherever you go, just take care of yourself. Okay? So where. अब now we have जो भी, मतलब कि whatever, जो भी तुम करना अच्छे से करना. Okay? जो भी एग्जाम में लिखना ठीक लिखना. So whatever you write, ensure you write it with the correct intent, or you use your brains, etc. So again, whatever, कभी भी, anytime. All right? You can come to my home anytime. आप मंदिर कभी भी जा सकते हैं. You can go and seek God's blessings anytime. Yes? कहीं भी, anywhere. Okay? जिसे भी, whoever. कौन के लिए, इंसानों के लिए, for people, और मे बी जब भी हम कौन क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसके लिए हम who यूज करते हैं. Who are you? Who is he? Who is your father, etc. So then we will use this one. And then we have जितना भी खाना चाहते हो खा लो. When people go to भंडारा, they are like जितना भी खाना है खा लेता हूँ, साथ में कुछ और भी ले जाता हूँ. Right? So जितना भी will be however much you want to eat. Okay? But do not waste anything. जैसा भी, however. All right? So ये हमारे कुछ words होते हैं जिनमें हमें confuse नहीं होना है. All right? इन सभी words में अगर आप एक चीज common देखिए, वो है ये. I hope you're able to notice. भी. This is the common word that's there. अब अगर मुझे बोलना है जब मैं आऊंगी तब क्लास शुरू होगी. Okay? When I will come, the class will begin then. जब भी मैं आऊंगी क्लास तभी शुरू होगी. Whenever I'm going to come or whenever I come, whenever I will come, the class will begin then. आप समझ पा रहे हैं डिफरेंस? Yes. अब अगर चलिए, अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं. मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ एंड आपको उसको इंग्लिश में लिखना है. ऑलराइट? सो माय सेंटेंस इज माय सेंटेंस इज जो भी खरीदना है खरीद लो. Let me see if you're able to answer it correctly.
ओके, सो मैंने भी सेंटेंस बोला, जो भी खरीदना है, जो भी आपको खरीदना है आप खरीद लो. ओके, सो हाउ विल वी से दिस इन इंग्लिश? जो भी खरीदना है खरीद लो. हाउ विल वी से दिस इन इंग्लिश? ट्राई आंसरिंग प्लीज. बाय परचेज में भी पता है एक डिफरेंस होता है. परचेज इज ऑलवेज फॉर कुछ बड़ी चीजों के लिए, टीवी खरीद ली, गाड़ी खरीद ली, दैट्स परचेज. ओके, एंड स्पेसिफिकली जब हमें उसकी रिसीट वगैरह मिलती है, थोड़े मतलब इट्स अ लॉन्गर प्रोसेस, तो हम परचेज यूज करते हैं. बाय मतलब कोई भी छोटी मोटी चीज. आई वेंट टू द शॉप एंड आई बॉट अ पेन. आई वेंट टू द शॉप टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर माई सेल्फ. बाय फॉर छोटी मोटी चीजें. परचेज जिनमें थोड़ा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, कोई बड़ी चीज होती है, दैट्स परचेज. ऑन दिवाली वी इट्स कंसिडर्ड गुड और मे बी ओमन टू परचेज अ व्हीकल और ज्वेलरी, राइट? सो उसमें परचेज यूज करते हैं. कमिंग बैक टू व्हाट वी वर लर्निंग, अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी प्रैक्टिस वो देती हूँ एंड हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे. ओके, सो हमारा सेंटेंस है, जब भी बारिश होती है हम चाय पीते हैं. आई थिंक ऑल ऑफ अस डू दैट, राइट? जब भी बारिश होती है हम चाय पीते हैं. अब आप इसको इंग्लिश में बताइए, क्या लिखेंगे? जब भी. अब जब को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन, राइट? एंड हमने क्योंकि भी लगा दिया है तो आ जाएगा व्हेनेवर. सो द सेंटेंस विल बी व्हेनेवर. ओके, माय स्लीव इज ट्रबलिंग मी. व्हेनेवर इट रेन्स वी कंज्यूम टी, या फिर वी टेक टी और वी हैव टी, राइट? जहां भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. ओके, सो मे बी साउंड्स लाइक अ प्रॉमिस of between friends that is taking place. So जहां भी, जहां किसके बारे में बात हो रही है? जगह के बारे में बात हो रही है. कहां, जहां, वहां, राइट? सो जगह के लिए हम बोलते हैं where. So where, and क्योंकि हमने भी लगाया हुआ है, we will add this one which is wherever. Wherever you are going to go, I'll be with you. Yes, जो भी मदद चाहिए मुझे बताओ. जो भी मदद चाहिए मुझे बताओ. अब इसमें हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे whatever help you need, just let me know that. Okay? जैसे भी हो, जैसा भी हो, हमें इसे पूरा करना है. जैसा भी हो हमें इसे पूरा करना है. मान लीजिए आपकी प्रोजेक्ट की कोई डेडलाइन है, यू हैव टू सबमिट ऑन ट्यूसडे एंड आज आप लोग बैठे हैं काम करने, तो आप बोलेंगे अरे जैसा भी करके देना है, बस हमें सबमिट करना है. ओके, सो जैसा भी हो, अगेन whatever और whatsoever, however, जैसा भी हो के लिए हम however भी यूज कर सकते हैं. कैसा? how does it look? ऐसा, it looks good. ओके, सो उसके लिए हम how यूज करेंगे. सो जैसा भी हो हमें इसे पूरा करके देना. however it looks, we just have to submit it. इसके बाद है, तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगा. a very sincere and sounds devoted to a friendship. तुम जो भी कहोगे मैं मानूंगा. जो भी, जो भी, जो भी. So whatever you say, I'm going to agree to it or follow it. Yes. चलिए, अब मैं आपको कुछ sentences देती हूँ and you have to tell them in English. Okay? Sentence है, जितनी भी मिठाइयाँ खानी है खा लो. मान लीजिए दिवाली है एंड इट्स फेस्टिवल ऑफ स्वीट्स. सो जितनी भी मिठाइयाँ खानी है खा लो. फॉर योर रेफरेंस, जितनी भी मिठाइयाँ खानी है खा लो. लेट मी सी इफ यू आर एबल टू आंसर इट. हाउएवर मच यू वांट टू ईट, ईट. ओके, जितना भी खाना है खा लो. माय नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू इज, लेट्स ट्राई पार्टिसिपेटिंग. जहां भी जाना है जाओ. जहां भी जाना है जाओ. सो लेट्स से it happens with our parents. हम पेरेंट्स से पूछते हैं, मम्मी यहाँ जाऊँ, मम्मी वहाँ जाऊँ, दोस्तों के साथ यहाँ जाना है, कभी कहीं और जाना है, कहीं ऑफिस ट्रिप है. एंड देन पेरेंट्स ऑफ कोर्स they want to keep you safe. But when we become adamant and जिद्दी, तब मम्मी बोलती हैं जहाँ भी जाना है जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ. So how will you say this in English? जहाँ भी जाना है जाओ. Try please. जहाँ भी जाना है जाओ. Wherever you want to go, go. एंड इसको आप सेंटेंस, इसका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इजी है अगर आप देखो ना. सो दैट्स, इट्स वेरी इजी. Wherever you want to go, go.
गो और इसके बाद कॉमा लगा के हमने कर दिया, ठीक है। वेनेवर, जब भी आप बोलेंगे आई एम अवेलेबल, ओके, सो वेनेवर यू से आई एम अवेलेबल, ऑलराइट। एक और सेंटेंस देती हूँ, प्लीज इसका ट्रांसलेशन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। माई नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट जिसे भी बुलाना है शादी में बुला लीजिए, जिसे भी बुलाना है शादी में बुला लीजिए, जिसे भी बुलाना है आपको शादी में बुला लीजिए। हाउ विल यू से दिस इन इंग्लिश? जिसे भी बुलाना है शादी में बुला लीजिए। Whoever you want to invite, invite or maybe you can invite, right? So ये हैं हमारे कुछ words that we have to, you know, हमें अपनी muscle memory में बिठाना होगा. Try to use them as much as you can so that, you know, you become habitual. I still remember when, you know, I still remember this and that's why मैंने ये आज थोड़ा add भी किया था. Once when I was in school, तो मुझे कुछ communicate करना था कि कुछ खो गया था class में ना, वो मुझे मिला था. कोई चीज़ थी, I think it was something precious. I don't exactly recall क्या थी, but when I just showed it to class, and of course I had to, you know, communicate about this in English कि जिसका भी है ले लो, but वो उस टाइम पे word ही नहीं है कि जिसका भी है इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, right? So this is what happens. आपको पता भी होता है पर आपकी क्योंकि मसल मेमोरी में वो है नहीं, आपको याद नहीं आ रहा, तो फिर आप सही टाइम पे बोल नहीं पाते. So just use them as much as you can, everybody, okay? Great.